Padma Private Limited was incorporated on 30th November 2016. So date of incorporation is 30th November is your date of incorporation. To take over the business of measures of Savita Traders as going concern from 1st June 2016. Business कब से take over किया है? What is your date of acquisition? It is acquired from 1st June 2016. 1st June 2016 is your date of acquisition. And what is year ending date? 31st March 2017. 1st June से business लिया है. Incorporation 30th November है. And year ending date is 31st March. चलो time ratio calculate कर लेते हैं. 1st June 2016. Date of incorporation is 30th November 2016 and year ending is 31st March. Correct, na? Yes. Chalo, let us calculate number of months in pre and number of months in post. Let us calculate. June से start हुआ है. June, July, August, September, October and November. For me it gives exactly 6 months. चेक करो 6 महीने होते हैं क्या? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर. 30th November है ना, so it is 6 months pre. December, January, February and March. How many months? December, November तक तो pre हुआ. So December, January, February and March. How many months in post? December, January, February and March. How many months in post? Yes, 4 months. So what is your time ratio? What is your time ratio? Time ratio is 3:2. 3:2. I hope so everyone might have got. चलो next. Let us see कौन सा item कौन से ratio में जाता है. Before that, let me check what are the adjustments. Interest on PC है. Sales ratio दिया हुआ है directly 9:7. Bad debt से related adjustment है. Rent से related adjustment है. Bad debt से related adjustment and rent से related adjustment. ये छोड़ के बाकी सब हमारे रेशियो के हिसाब से जाएगा. यस, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? मैनेजमेंट एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाएगा? मैनेजमेंट एक्सपेंसेस का मतलब होता है ऑफिस एक्सपेंसेस. कौन सा रेशियो? यस, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर. टाइम रेशियो. यस. रेंट, देयर इज एन एडजस्टमेंट, इसके लिए छोड़ दिया. ऑफिस एक्सपेंसेस, टाइम रेशियो. डायरेक्टर्स फीस, Post.
Postage and telegram. Postage and telegram. Time ratio. Anything that relates to office should go in time ratio. Three samples. Three samples. Three samples काय के लिए यूज होता है? Three samples क्यों देते हैं? Advertisement. Advertisement. The advertisement is related to sales ratio. Formation expenses. Company formation expenses. कंपनी फॉर्मेशन एक्सपेंसेस. कंपनी बन गई, कंपनी का बनाने का खर्चा टाइम रेशियो में क्यों जाएगा? यस तन्वी, वेरी गुड. पोस्ट. डिबेंचर इंटरेस्ट. डिबेंचर्स कंपनी इशू करती है, डिबेंचर पे इंटरेस्ट कंपनी देती है. एनीथिंग जो कंपनी करती है वो पोस्ट में जाएगा. कमीशन एंड डिस्काउंट. कमीशन एंड डिस्काउंट. सेल्स रेशियो. depreciation. Depreciation. Time ratio, very good. Carriage outward. Sales ratio. Goodwill written off. Adjustment. First adjustment is related to this. Dividend on shares. कौन देता है डिविडेंड? डिविडेंड ऑन शेयर. सेल्स रेशियो. मोसेस, डिविडेंड कौन देता है? डिविडेंड इज गिवन बाय कंपनी. तो डिविडेंड ऑन शेयर्स कहाँ जाएगा? पोस्ट में. ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में? ग्रॉस प्रॉफिट कौन से रेशियो में? ग्रॉस प्रॉफिट एंड सेल्स रेशियो. अभी ये जो गुडविल है ना, इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है. ये गुडविल रिटर्न ऑफ है ना, इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट है. Can you see? I've highlighted a figure. Goodwill return of 10,000. Purchase consideration was agreed at 2,50,000 for asset valued at rupees 2,40,000. 2,40,000 का asset है. Asset is of 2,40,000. कितने का asset है? Asset is of 2,40,000. कंपनी ने फर्म खरीदा जिसका एसेट की वैल्यू थी 2,40,000. लेकिन कंपनी पीसी कितना दे रही है? What is the amount of PC that the company is given? Company is giving a purchase consideration of 2,50,000. कंपनी ने 2,40,000 के एसेट्स के बदले में 2,50,000 दिया, मतलब 10,000 एक्स्ट्रा दिया है. कंपनी हैज पेड 10,000 extra. Yes or no?
यस मैम। 2,40,000 के बदले में 2,40,000 के एसेट्स के बदले में कंपनी ने 2.5 लाख रुपए दिए फर्म को। तो ये जो 10,000 जो एक्स्ट्रा दिया है वो काय का दिया? तो वो जो 10,000 दिया एक्स्ट्रा वो गुडविल का दिया। काय का दिया? जो 10,000 एक्स्ट्रा दिया गुडविल। गुडविल का। Whenever company pays any extra amount, that extra amount is paid for goodwill. यहाँ पे देखो गुडविल रिटर्न ऑफ कितना है? 10,000 ही है। एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय कंपनी इज फॉर गुडविल। और वो गुडविल बाद में कंपनी जब पीएनएल में लेके आती है, इसका मतलब वो गुडविल राइट ऑफ कर दिया। क्या कर दिया? गुडविल को राइट ऑफ कर दिया। यहाँ पे गुडविल रिटर्न ऑफ दिख रहा है 10,000। किसने राइट ऑफ किया ये गुडविल? कंपनी ने, क्योंकि कंपनी ने 10,000 एक्स्ट्रा दिया था। वो लॉस है एक्चुअली। कंपनी 2,40,000 के बदले में 2,50,000 दे रही है, 2.5 लाख दे रही है। तो कंपनी 10,000 लॉस बियर कर रही है ना, तो वो लॉस पीएनएल में आएगा। ये लॉस किसका है? लॉस किसका है? किसने ज्यादा दिया 10,000? कंपनी। कंपनी ने। तो ये लॉस किसका हुआ? कंपनी का। कंपनी का। तो कंपनी का लॉस है तो कौन से कॉलम में जाना चाहिए? कंपनी का लॉस है तो प्री में जाना चाहिए कि पोस्ट में जाना चाहिए? जैसे पोस्ट। कहाँ जाएगा? पोस्ट। पोस्ट। एनी गुडविल रिटर्न ऑफ और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस दोनों ही कहाँ जाता है? पोस्ट में। इज इट क्लियर? यस, नो? यस मैम। In lieu of interest on PC, the vendor would get 50% of the profit earned prior to incorporation. इसका मतलब क्या होता है कि इंटरेस्ट ऑन पीसी के बदले में, इन लिeu ऑफ मतलब बदले में, इंटरेस्ट ऑन पीसी वेंडर वुड गेट, वेंडर मतलब जो ओनर था बिजनेस का, फर्स्ट ओनर ऑफ द बिजनेस, उसको हम लोग 50% प्रॉफिट देंगे। कौन सा प्रॉफिट देंगे? प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन वाला, मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड का जो प्रॉफिट आएगा उसका 50% किसको जाने वाला है? वेंडर को जाने वाला है। वेंडर मतलब ओनर। Vendor would get 50% of the profit prior to incorporation. ये रेयर एडजस्टमेंट है जो अभी मैं सिखाने वाली हूँ, ओके? प्रॉब्लम करने के टाइम पे सेल्स रेशियो दिया है 9:7, लिख देते हैं। सेल्स रेशियो इज इक्वल टू, क्लियरली दिया 9:7, आपको करना ही नहीं है कुछ। सेल्स रेशियो इज 9:7। Bad debts ₹800 related to sales made in pre-incorporation period. Bad debts है 2,000। बैड डेट, हाँ 800 है ना? एक मिनट, बैड डेब्ट्स है ये देखो 2,000 है ना? ओके हाँ। ये देखो 2,000 है ना? यस मैम। बैड डेब्ट्स इज 2,000। उसमें से बोला है कि 800, उसमें से 800 जो है कभी का है? प्री इनकॉर्पोरेशन का। 2,000 में से प्री का 800 है, तो पोस्ट का कितना? पोस्ट का कितना? टोटल बैड डेट्स इज 3,000। टोटल बैड डेट्स इज 2,000। 2,200।
2000 टोटल है, उसमें से 800 बोल दिया प्री का, तो बचा हुआ 1200 किसका होगा? पोस्ट का। उसकी रेंट, अभी ये रेंट का एडजस्टमेंट देखो। रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड विच वॉज डबल इन द पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में ये जो आपका स्पेस है वो डबल हो गया। अभी जब भी ऐसा कुछ आए ना, प्री में इतना था बाद में डबल हो गया, तो सबसे पहले तो मंथ्स लिख लो। सबसे पहले क्या लिखेंगे? मंथ मंथ्स। वर्किंग नोट नंबर 4, calculation of ratio for rent. तो यहाँ पे हम लोग सारे मंथ्स लिख लेते हैं। मंथ्स चालू हो रहे हैं जून से, आपका पीरियड स्टार्ट हो रहा है जून से। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। फ्लोर स्पेस डबल हो गया। कब डबल हो गया? पोस्ट इनकॉर्पोरेशन में। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन मेरा दिसंबर से है। नवंबर, 30 नवंबर को देखो कंपनी फॉर्म हुई है, तो मतलब दिसंबर से मेरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड है जिसमें एरिया डबल हो गया। डबल हो गया मतलब 2। दिसंबर, जनवरी, मार्च में मेरा एरिया डबल हो गया मतलब 2। अगर दिसंबर से डबल हो गया मतलब उससे पहले सिंगल था। मैं बोल रही हूँ दिसंबर से मेरा एरिया डबल हो गया मतलब फ्लोर स्पेस डबल हो गया, मतलब उससे पहले सिंगल ही था। पहले 1 रूम किचन था, बाद में डबल रूम किचन हो गया। तो मैंने नवंबर तक 1 लिया, दिसंबर से उसको डबल कर दिया। नाउ लेट अस कैलकुलेट प्री और पोस्ट का रेशियो। सो प्री में कितना आएगा? 1 2 3 4 5 6। प्री 6, पोस्ट 4 5 6 7 8। इट इज पोस्ट। तो आपका रेंट का रेशियो आ रहा है 3:4। रेशियो फॉर रेंट इज 3:4। इज इट क्लियर? यस नैन्सी, करेक्ट। मैम एक बार और बताओ ना। हाँ, देखो क्या बोला है आपका फ्लोर जो रेंट है ना वो एरिया के हिसाब से भरते हो। रेंट हमेशा एरिया पे डिपेंड करता है ना, बड़ा एरिया तो रेंट ज्यादा, छोटा एरिया तो रेंट कम। 1 रूम लोगे तो रेंट कम देना पड़ेगा, 2 रूम लोगे तो रेंट ज्यादा देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोला है, रेंट जो है एरिया के हिसाब से भर रहे हैं। और पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड में एरिया डबल हो गया। एरिया डबल हो गया मतलब रेंट भी डबल हो गया। मेरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड चालू कब से हो रहा है? 30 नवंबर को कंपनी रजिस्टर हुई है, मतलब दिसंबर से मेरा पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड चालू हुआ। मतलब दिसंबर से रेंट डबल हो गया, एरिया डबल मतलब रेंट भी डबल ना। तो दिसंबर से यस मैंने डबल किया और जून में उसको 1 लिया। अज्यूम किया कि पहले 1 है, बाद में डबल हुआ मतलब 2 हो गया। इसको फिर प्री और पोस्ट में डिवाइड किया, नवंबर तक प्री और दिसंबर से पोस्ट। टोटल लिखा और उसका रेशियो निकाला। इज इट क्लियर यस मैम। नीरज?
बाकी लोगों को क्लियर हुआ? यस मैम। चलो स्टार्ट करते हैं देन। हो गई हमारी एडजस्टमेंट्स। एक एडजस्टमेंट बाकी है, ये वेंडर वुड गेट 50% ऑफ प्रॉफिट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। तो जब तक प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक हम वो नहीं कर पाएंगे। चलो लेट अस स्टार्ट। स्टार्ट करें? आर यू ऑल रेडी विथ योर कॉलम्स? Yes, ma'am. So सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट 96,000 will be divided in the sales ratio which is 9:7. Sales ratio 9:7. 96,000 को 9:7 में डिवाइड करो। 96,000 in the ratio of 9:7. 96,000 into 9 divided by 16. 96,000 into 9 divided by 16. 54,000. 54,000. 96,000 minus 42,000. 42,000. So your total income is 54,000 and 42,000. Yes, you're talking about the video. Management expenses. Yes, you're talking number Lana. All the Bafa will account, girls talking number. Management expenses will be divided on the basis of time ratio 3:2. Amount है 12,000. 12,000 को 3:2 में डिवाइड करो कितना होता है? 12,000 in the ratio of 3:2. Be right. Yes, very good. Halal paper को नहीं. 7,200. And किसी के बैकग्राउंड में आवाज आ रहा है, प्लीज म्यूट। 7,200 and 4,800. नेक्स्ट रेंट। रेंट के लिए हम लोगों ने नया रेशियो निकाला है। रेंट का रेशियो कितना आया हमको? 3:4 ना। रेंट का रेशियो है 3:4। रेंट का अमाउंट है 4,200। 4,200 इन द रेशियो ऑफ 3:4 करो कितना होता है? 4,200 into 3 divided by 7. 1,800. 4,200 into 4 divided by 7. Yes, correct. Very good. 1,400. Yes. Office expenses. Office expenses are 5,500. उसको हमको डिवाइड करना है टाइम रेशियो में, दैट इज 3:2.
5,500 in the time ratio, that is 3:2. 3,300. Yes, 3,300 and 2,200. Yes, ma'am. अनिका कहाँ गायब हो गई है? मैंने उसको तो लेक्चर में देखा ही नहीं है काफी दिन से. डायरेक्टर्स फीस पोस्ट. Amount is 1,000. Postage and telegram. Time ratio, that is 3:2. 500 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो it will be 300 and 200. Yes, correct. Bad debts. Working note number 3. 800 or 12. हाँ, 800 और 1200 डायरेक्ट अमाउंट है हमारे पास प्री और पोस्ट का. Free samples. Sales ratio. नाइन इज टू सेवन. 800 को डिवाइड करो 9:7 में. 800 को डिवाइड करो 9:7 में. Divide 800 in the ratio of 9:7. 450 or 350. 450 and 350. Formation expenses. Formation expenses directly post में जाएगा. 2,000. डिबेंचर इंटरेस्ट भी पोस्ट में. आप लोग ना ये याद करो आइटम कौन सा प्री में जाता है कौन सा पोस्ट में जाता है. अभी भी अटक जाते हो. कमीशन एंड डिस्काउंट. सेल्स रेशियो 9:7. 800 को 9:7 में डिवाइड करोगे तो इट विल बी 450 एंड 350. ऑलरेडी कर चुके हैं, इसके लिए मैं लिख रही हूँ. Depreciation. Time ratio. 3:2. 3,000 को 3:2 में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 3,000 in the ratio of 3:2 कितना आएगा? 3,000 in the ratio of 3:2 कितना होगा? Very good. 1,812. Good. Carriage outward. Sales ratio. $1,600 in sales ratio, that is 900 and 700.
Goodwill written off. Post amount is 10,000. Dividend on shares. Post 6,000. I think we are done with all the expenses. सारे expenses हो गए. Expenses का total करते हैं. Expenses का total करते हैं. For pre का 17,000. Pre का कितना? 17,000. Others, please calculate. Pre का 17,000 है और post का कितना है? Post का कितना है? Yes, Tanvi, you are correct. 33,400. अब यहाँ पे what will be your profit? Pre का profit कितना होगा? Profit to vendor. अभी हमको बोला है प्री इनकॉर्पोरेशन का जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 50% हमको किसको देना है? वेंडर को देना है. किसको देना है? वेंडर को. देखो 17,000 इज योर एक्सपेंसेस. 54 में से अगर 17 माइनस करते हो तो कितना बचता है? 54,000 में से 17,000 माइनस करते हो तो कितना बचता है? So 50% of 54,000 minus 17,000 कितना आता है? $54,000 minus 17,000 कितना होता है? उसका 50%. $54 minus 17, 37,000 आता है. उसका 50% आता है 18,500. तो ये जाएगा वेंडर को और remaining 50% that is 18,500 will be capital reserve. जो बचा हुआ 500 है वो आएगा capital reserve. Is it clear? Yes, ma'am. Net profit. आपका प्री पोस्ट का प्रॉफिट है 42,000. ग्रॉस प्रॉफिट 42,000 माइनस 33,400. 42,000 4,300. minus 33,400. 8,600 आ रहा है, राइट है क्या? नेट प्रॉफिट इज हाँ राइट है. एवरीवन. किसी को कोई डाउट है? नो मैम. ये लास्ट वाला पार्ट समझा? 50% हमको वेंडर को देना था.
मैम कैलकुलेशन फिर से सब कौन सा कैलकुलेशन? वेंडर का देखो वेंडर को बोला है प्री इनकॉर्पोरेशन का जो प्रॉफिट है। अभी मैं यहाँ पे ना प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट निकालती हूँ। प्रॉफिट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, that is gross profit minus expenses. Gross profit है 54,000, 54,000 minus 17,000, 54,000 minus 17,000, तो मुझे प्री का प्रॉफिट आया 37,000. आर यू एबल टू सी दिस? 37,000 प्री इनकॉर्पोरेशन का प्रॉफिट है 37,000. अब इस 37,000 का 50% मुझे वेंडर को देना है. ये देखो यहाँ पे लिखा है वेंडर वुड गेट 50% ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट. सो 37,000 का 50% 18,500 आता है जो वेंडर को जाता है. 37,000 में से 18,500 वेंडर को दिया तो बचा कितना? 18,500. 37,000 माइनस 18,500 इज 18,500 जो जाएगा कैपिटल रिजर्व में. मोसेस समझ में आया? इज इट क्लियर? यस यस नो? मैम यस मैम आई होप सो. प्रॉब्लम इज क्लियर. मैम एक बार वर्किंग दिखाओ आपको. ये देखो आज हमने दो नया पॉइंट किया है. एक गुडविल रिटर्न ऑफ और एक ये प्रॉफिट टू वेंडर. होमवर्क देना चालू करूं कि नहीं? स्टिल यू आर नॉट कंफर्टेबल? कल से मैं होमवर्क देना चालू करूंगी. हाँ, आज कल का एक दिन और. ओके मैम. ठीक है. डन. मैम डन हो गया पर एक बार वर्किंग नोट देखना वापस में. वर्किंग नोट यहाँ से एक ही देखना. क्या है? एक तो टाइम रेशियो, सेल्स रेशियो तो दिया ही था. मेन तो रेंट और बैड डेब्ट्स ही, और तो कुछ है नहीं. डन. डन. कैन आई एंड द लेक्चर? चलो नैन्सी, आज देखो मैं सब अपलोड कर रही हूँ. आज टुडे आई विल बी अपलोडिंग ऑल माय लेक्चर्स ऑन यूट्यूब. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ. बाय मैम. थैंक यू. बाय बाय.